Hello students, this is Ejaz Sir's Maths Academy and I am Ansar Sir. Today we have to study, we have to continue our topic and we have to see the differences between distance and displacement. We have to see the differences between distance and displacement. Let us now see, in yesterday's example, by mistake I said something and I wrote something. We know yesterday I said what is the total distance travelled by Sheetal. I should have said Sheetal, but by mistake I said Sangeeta. So the total distance travelled by Sangeeta is only 1200 meters and the total distance travelled by Sheetal is 500 plus 1200 is equal to 1700. I am very happy to see that 2 or 3 students reminded me of that mistake, and thanks to their good observation. Today we are going to see the differences between distance and displacement. Let us now first see what displacement is. It should not create any confusion. Okay. Remember, I will first, distance is already known to you. See, this is one point X. From point X, one auntie goes to point Y. And the auntie travels a distance of 3 meters. How much distance is the auntie traveling? 3 meters. And she is going towards east. This is east. And the upward distance is, this is north. Here it is west. And downwards is south. This is south. So the auntie is going towards east. How much distance has she travelled? 3 meters. Then from point Y, she started travelling towards north and she went towards north. It was her direction, and she travelled a distance of 4 meters. She moved towards north and she travelled a distance of 4 meters. And then afterwards, we will join these points to make the hypotenuse of this triangle. So this is the path. The path followed by the auntie is, she started from X and went towards east up to point Y, and she travelled a distance of 3 meters. From point Y, she started going towards north and she travelled a distance of 4 meters. How much is the total distance travelled by the auntie in going from point X, which was her starting point? Starting point was X. And where did she stop? She stopped at point Z. Where did she stop? She stopped at point Z. So, what is her point Z? It is her finishing point. What is Z? Z is her finishing point. So, can you tell me how much distance did she travel? So, the distance travelled by auntie is, distance travelled by auntie, is equal to 3 meters plus 4 meters is equal to 7 meters. Understood? How much distance did she travel? 7 meters. This is her total distance. And how much will her displacement be? How much will be her displacement? If we apply Pythagoras theorem in this triangle, do you know what Pythagoras theorem in mathematics is? In maths, there is a theorem called Pythagoras theorem. Even if you don't know, let us say this side is 5 meters. X and Z is 5 meters. X and Z is 5 meters. So, how much is her displacement? Starting point X and finishing point is Z. How much is the displacement? So, we will say displacement of the auntie is, displacement of the auntie is equal to, how much will be her displacement? What is displacement? The shortest distance between the starting point and the finishing point. What was her starting point? X. And what was her finishing point? Z. So starting point is X and finishing point is Z. And what is the shortest distance? What is the shortcut between X and Z?
This is long cut going from x to y and from y to z. This is long cut. What is the shortcut? X to z directly 5 meters. So this shortcut is 5 meters. That's why we will say the displacement of the auntie is 5 meters shortcut. Understood? Have you noticed the difference between distance and displacement? Distance is the length of actual path travelled by the auntie. Actual path travelled by the auntie. The auntie went from x to y and from y to z. She did not go from x to z. She did not go from x to z. But still her displacement will be 5 meters. Her displacement will be 5 meters means she could have followed this shortcut path. She could have made a displacement of, she has made a displacement of 5 meters actually while going from x to y and y to z. So distance is the length of actual path. सच में जिस रास्ते से चलकर गई है आंटी वो रास्ते की टोटल लंबाई को बोलते हैं डिस्टेंस. और जिस रास्ते से आंटी नहीं भी गई या गई भी होंगी उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. आंटी चाहे जाए उस रास्ते से या नहीं जाए, लेकिन जो शॉर्टकट वाला रास्ता रहता वो शॉर्टकट वाले रास्ते की लंबाई को बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट. डिस्प्लेसमेंट यानी शॉर्टकट और डिस्प्लेसमेंट हमेशा स्ट्रेट लाइन वाला रास्ता रहता. डिस्प्लेसमेंट में ऐसा घूम घूम के नहीं जाते. अंडरस्टूड? ये आंटी का डिस्प्लेसमेंट समझ में आया 5 मीटर्स क्यों है और आंटी का डिस्टेंस कितना है 7 मीटर्स. आई होप आपको ये एग्जांपल समझ में आ गया होगा. अब मैं आपको एक अंकल का एग्जांपल और एक दे देता हूँ, फिर हम है ना डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंशिएट करेंगे, है ना, डिस्टिंग्विश बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट करेंगे. लेट अस नाउ सी अनदर एग्जांपल. इससे आपको कुछ और रूल्स समझ में आ जाएंगे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के. सी, यहां से फ्रॉम पॉइंट ए से एक अंकल चलना स्टार्ट करते हैं. जॉगिंग करने के लिए जा रहे हैं वो अंकल. और कितना चलते हैं वो? दिस इज पॉइंट ए. पॉइंट ए इज 0. ये गए तो 5 मीटर, 10 मीटर, 15 मीटर्स, 20 मीटर्स, 25 मीटर्स, 30 मीटर्स, 35 meters, 40 meters, 45 meters and 50 meters, and this is point B. और फिर ये है point C. ध्यान से समझना और मुझे आप इसका आंसर अब आपसे पूछ तो सकता नहीं. अगर ये अपनी रियल क्लास होती तो मैं आपसे पूछता था इसमें आंसर, बट स्टिल हम ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे. एक अंकल है, सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए निकले, जॉगिंग करने के लिए निकले वो अंकल और यहाँ से चलना स्टार्ट किए. ठीक है, ए से 5 मीटर, 10 मीटर, 15 मीटर, 20 मीटर, 25 मीटर, 30 मीटर, 35 मीटर, 40 मीटर, 45 मीटर, 50 मीटर तक वो अंकल जॉगिंग करते हुए चले गए. फिर 50 मीटर जब वो पॉइंट बी पर पहुंचे ऐसा, तो पॉइंट बी पर उन्होंने डायरेक्शन चेंज कर लिया. जैसे समझो मैं पॉइंट ए से ऐसा आया पॉइंट बी तक और बी पर मैं डायरेक्शन चेंज कर ले रहा ऐसा, तो उसी तरह वो अंकल आए जॉगिंग करते करते और अपना डायरेक्शन चेंज कर लिए. और डायरेक्शन चेंज करने के बाद वो अंकल ने क्या किया, फिर और जॉगिंग कंटिन्यू किए. अब वापस जा रहे ए की तरफ, तो उन्होंने कहाँ से यहाँ तक आए, यहाँ तक आए, यहाँ तक आए और सी तक आए. और जैसे वो जॉगिंग करते करते वो अंकल पॉइंट सी तक पहुंचे, वैसे ही अंकल को हार्ट अटैक आया और वो अंकल की डेथ हो गई. बहुत ज्यादा जॉगिंग कर लिए शायद उन्होंने, तो अंकल की डेथ हो गई. अंकल की क्या हो गई? डेथ हो गई. तो अंकल का फिनिशिंग पॉइंट क्या था? सी. फिनिशिंग पॉइंट यानी फिनिशिंग पॉइंट उसको बोलते हैं जहां जाके खत्म हो गए, रुक गए. खत्म हो गए यानी मर गए नहीं, जहां जाके रुक गए उसको बोलते हैं फिनिशिंग पॉइंट. और अंकल का स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा था? पॉइंट ए. अंकल का स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा था? पॉइंट ए वाज हिज स्टार्टिंग पॉइंट. पॉइंट ए उनका स्टार्टिंग पॉइंट है. पॉइंट सी क्या है? उनका फिनिशिंग पॉइंट है. ये एग्जांपल टेक्स्ट बुक में नहीं दिया है. ये एग्जांपल मैं कहां से दे रहा हूं? 9th स्टैंडर्ड के सीबीएसई बोर्ड की टेक्स्ट बुक में ये एग्जांपल दिया है. ठीक है, तो क्योंकि हम लोग सीबीएसई बोर्ड को भी पढ़ाते हैं, लेकिन 9th सीबीएसई को इस साल से पढ़ाना बंद कर दिया हमने, तो 9th स्टैंडर्ड की सीबीएसई की टेक्स्ट बुक में ये एग्जांपल दिया है. अच्छा एग्जांपल है इसलिए मैं आपको भी समझा रहा हूं, इससे समझने में आसानी होती है. अब देखो वो अंकल का डिस्टेंस कितना है? डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अंकल, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अंकल. अब ये रियल क्लास नहीं है, वरना मैं आपसे पूछा था बताओ अंकल का डिस्टेंस कितना है. कौन बताएगा? हाथ ऊपर करो. वेरी गुड. अंकल का डिस्टेंस बोलो कितना है?
5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50. 50 के बाद क्या हुआ? अंकल रुके क्या? नहीं, अंकल 45 मीटर 50 मीटर चले, फिर 50 मीटर से पलट कर आए। तो 50 मीटर से जब यहाँ आए तो और कितना चले? वो 5 मीटर चले, तो 55 मीटर, 60 मीटर, 65 मीटर, समझ लो 50 मीटर तक आ गए। यहाँ तक कंफ्यूज मत होना, ध्यान से समझो। अंकल चलते चलते यहाँ तक आए तो उनका डिस्टेंस कितना है? डिस्टेंस यानी सच में कितना चले। सच में कितना चले अंकल? 50 मीटर तक चले, उसके बाद चलना बंद कर दिए क्या? नहीं, फिर पलट गए और फिर और चलना चालू किए। कितना चले? 50 से 45 यानी कितने मीटर चले? 5 मीटर। तो 50 मीटर के आगे और 5 मीटर चले तो 55 मीटर चल लिए। फिर 55 मीटर से यहाँ तक आए तो 60 मीटर, यहाँ तक आए तो 65 मीटर, यहाँ तक आए तो 70 मीटर। ठीक है, यहाँ तक आए तो कितना मीटर चले अंकल? 70 मीटर। 70 मीटर, अंडरस्टूड? ही ट्रेवल्ड अ डिस्टेंस ऑफ 70 मीटर, 70 मीटर। कंफ्यूजन है किसी को? देखो ध्यान से, फिर से यहाँ तक आए तो कितना चले? 50 मीटर। 50 मीटर पॉइंट बी पर आने के बाद उन्होंने क्या किया? डायरेक्शन बदल लिया। डायरेक्शन बदल के अब क्या किया? 50 मीटर से यहाँ गए तो 55 मीटर, फिर और यहाँ गए तो 60 मीटर, यहाँ से यहाँ गए तो 65 मीटर, यहाँ से यहाँ तो 70 मीटर। टोटल डिस्टेंस ऐड होता है, डिस्टेंस हमेशा ऐड होता है, डिस्टेंस कभी सब्ट्रैक्ट नहीं होता। तो उनका डिस्टेंस कितना है? 70 मीटर। और अंकल का डिस्प्लेसमेंट कितना है? डिस्प्लेसमेंट ऑफ द अंकल, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द अंकल, अंकल का डिस्प्लेसमेंट कितना है? तो अंकल का स्टार्टिंग पॉइंट क्या था? अंकल का स्टार्टिंग पॉइंट क्या था? ए। और अंकल का फिनिशिंग पॉइंट क्या है? सी। अंकल वहां पे फिनिश हो गए, मर गए अंकल पॉइंट सी पर जाके। तो अंकल का फिनिशिंग पॉइंट क्या है? पॉइंट सी है। पॉइंट सी अंकल का फिनिशिंग पॉइंट है। अब मुझे बताओ सबसे शॉर्टकट डिस्टेंस कौन सा है पॉइंट स्टार्टिंग और फिनिशिंग पॉइंट का? ये ए स्टार्टिंग पॉइंट है और सी फिनिशिंग पॉइंट है। और ए और सी में कितना डिस्टेंस है टोटल? शॉर्टकट में 30 है ओनली, है ना? ए से सी तक कितना है? शॉर्टकट 30 है। तो अंकल का डिस्प्लेसमेंट हुआ 30 मीटर। बोलो कंफ्यूज हुए कि नहीं हुए? नहीं हुए? वेरी गुड। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द अंकल विल बी 70 मीटर्स एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द अंकल इज 30 मीटर्स। अंकल का डिस्प्लेसमेंट सिर्फ 30 मीटर है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट में ये नहीं देखा जाता कि वो चले कितना, किधर गए थे, कहां से आए थे, कितना चले, कैसे चले, साइकिल से चले, पैदल से चले। डिस्प्लेसमेंट में कुछ नहीं देखा जाता, सिर्फ एक दो चीजें देखते हैं, चलना स्टार्ट कहां से किए थे और आखिर में वो फिनिश कहां पर हो गए, यानी उन्होंने चलना कहां खत्म किया। तो चलना स्टार्ट किया था ए से और चलना खत्म किया सी पर। तो ए से सी के बीच का सबसे शॉर्टकट डिस्टेंस कितना है? तो ए से सी का सबसे सीधा सीधा डिस्टेंस है 30, इसीलिए वो अंकल का डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? 30 मीटर्स। बात समझिए। हालांकि अंकल इधर भी गए थे 35, अंकल इधर भी गए थे 40, 45, 50 भी गए अंकल, 55 से मुड़ के पलट के भी आए। लेकिन हम डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करते समय वी नेवर पे एनी अटेंशन टू वो किधर गए थे और किधर से आए, वो नहीं देखा जाता। आप आज आपके घर से निकलो पैदल पैदल, स्टार्टिंग पॉइंट आपका घर है और चलते चलते पूरी दुनिया घूम के आ जाओ, पूरे वर्ल्ड मैप, पूरे वर्ल्ड का टूर कर लो, पूरी दुनिया का सफर कर लो और घर में आ जाओ फिर से, तो आपका डिस्प्लेसमेंट 0 होगा। ठीक है, क्योंकि ये नहीं देखा जाता आप कहाँ गए थे, किधर गए थे, आपका स्टार्टिंग पॉइंट क्या था और आप आखिर में आके रुके कहाँ पर, ये देखा जाता है। तो अंकल निकले थे घर से पॉइंट ए से और आखिर में रुक कहाँ गए? वो पॉइंट सी पर रुक गए। क्यों रुक गए? क्योंकि उनकी डेथ हो गई। अगर डेथ नहीं भी होती और वहां रुक जाते थे, वो बैठ जाते थे 10 मिनट के लिए, तो हम बोलते थे अंकल का डिस्प्लेसमेंट 30 मीटर। ठीक है। हाँ, अगर अंकल यहाँ रुकते नहीं थे पॉइंट सी पर और चलते 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 फिर से पॉइंट ए पर आ जाते थे, तो अंकल का डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाता था, डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाता था। बात समझ रहे? तो एक चीज ये बात याद रहेंगे आपको। अब मुझे ये बताओ कि अंकल इधर भी गए थे और वापिस भी आए, तो इतना सब चलने के बाद भी उनका डिस्प्लेसमेंट 30 क्यों है? क्योंकि जो आदमी राइट हैंड साइड की तरफ जा रहा है उसका डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव माना जाता है। पहले ये आप समझ लो, पहले ये अगर एग्जांपल समझ गया होगा तो वी कैन प्रोसीड, वी कैन मूव अहेड। ठीक है, अंकल का डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट समझ में आ गया आपको। 0 से चलना स्टार्ट की अंकल ने, बी तक गए 50 मीटर, फिर बी से 45 वाले पर गए तो उनका डिस्टेंस हुआ 55, फिर उसके बाद में डिस्टेंस हुआ 60, 65
एंड 70, जब वो पॉइंट सी तक पहुँचे तो टोटल डिस्टेंस कितना चले 70 मीटर्स, और उनका डिस्प्लेसमेंट कितना है स्टार्टिंग एंड फिनिशिंग पॉइंट के बीच का शॉर्टकट डिस्टेंस तो 30 मीटर्स है। ठीक है, आई होप आपको ये एग्जांपल समझ में आ गया होगा। नाउ वी विल डिफरेंशिएट बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। अब हम डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंशिएट बिटवीन करेंगे। लेट अस नाउ सी, थोड़ा ध्यान से समझना, अगर कहीं डिफिकल्टी आती है तो बिंदास में पूछने का। कल आपको घर वाला एग्जांपल समझा था, घर से स्कूल गए 5 किलोमीटर और स्कूल से फिर घर पे वापस आ गए, तो स्टार्ट कहाँ से हुए थे? घर से, और एंड कहाँ पे हुए, फिनिश कहाँ पे हुए? घर में। तो घर से निकले थे और घर पे ही आ गए तो डिस्प्लेसमेंट 0। जहाँ से स्टार्ट हुए और वहीं पर आ गए अगर, तो डिस्प्लेसमेंट हमेशा 0 हो जाता है। ठीक है, ये किसी ने पूछा है मुझे क्वेश्चन के साथ, एक बार वो घर से घर वाला एग्जाम्पल समझा लेना। तो घर से निकले और घर पर ही आ गए तो डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाता है। आई होप आपको समझ गया होगा। अब देखो हम डिफरेंशिएट बिटवीन करेंगे डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट में। इधर मैं लिख रहा हूँ डिस्टेंस, हियर आई एम राइटिंग डिस्टेंस, DISTANCE डिस्टेंस, और इधर मैं लिख रहा हूँ डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट क्या होता है तो ध्यान से समझो। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, सो डिस्टेंस का डेफिनेशन लिखेंगे हम। फर्स्ट पॉइंट क्या बनाएंगे? डेफिनेशन। डिस्टेंस का डेफिनेशन क्या है? द लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ traveled by an object while going from one point to another point, ठीक है, एकदम खुले खुले लेटर्स लिख रहा हूं। और इधर क्या लिखेंगे? डिस्प्लेसमेंट। द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस between starting point and finishing point. The shortest distance between starting point and finishing point is called displacement. ये हो गया पहला डिफरेंस। सेकंड डिफरेंस क्या है? Let us see. The second difference is distance is always पॉजिटिव। ठीक है, समझा देता हूं। डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव। और इधर डिस्प्लेसमेंट के बारे में क्या लिखेंगे हम? डिस्प्लेसमेंट कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव और 0। डिस्प्लेसमेंट कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव, बस इतना ही लिखते हैं। अब इसका मीनिंग समझो। डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव रहता है। मतलब अगर मैं यहां से कहीं जा रहा हूं, वो अंकल का एग्जांपल ले लो। अभी वो अंकल कहाँ गए थे? पहले 50 मीटर तक गए थे पैदल चलते हुए। अभी थोड़ी देर पहले जो हार्ट अटैक वाले अंकल थे 50 मीटर तक गए थे वो। ठीक है, फिर 50 मीटर से जब वो वापस आए तो उनका डिस्टेंस अपन ने क्या किए? प्लस किए। कैसे प्लस किए? 50 मीटर से जब वो लेफ्ट हैंड साइड की तरफ जाना चालू किए तो अपन ने क्या बोले? 55, 60, 65, 70। डिस्टेंस हमेशा प्लस किया जाता है, डिस्टेंस हमेशा ऐड किया जाता है। जितना चलोगे उतना ऐड करेंगे। अभी थोड़ी देर पहले अपन ने ये भी देखे थे कि एक आंटी थे 3 मीटर इधर चले थे, फिर 4 मीटर इधर चले थे वो आंटी, तो उनका डिस्टेंस अपन ने क्या किए थे? ऐड किए थे। 3 मीटर इधर चले थे, 4 मीटर इधर चले थे, तो टोटल डिस्टेंस कितना हुआ था? 7 मीटर।
तो डिस्टेंस हमेशा ऐड किया जाता है, डिस्टेंस हमेशा प्लस रहता है, पॉजिटिव रहता है, डिस्टेंस कभी माइनस में नहीं रहता। अगर आपसे कोई पूछे यहाँ से मुंबई का डिस्टेंस कितना है, तो आप क्या बोलोगे? यहाँ से मुंबई का डिस्टेंस 800 किलोमीटर है। यहाँ से मुंबई का डिस्टेंस कितना है? 800 किलोमीटर। बात समझ रहे हो? अब आपको एक एग्जांपल देता हूं मैं। ये है ईस्ट, दिस इज ईस्ट। सी स्टूडेंट्स, दिस इज ईस्ट एंड दिस इज वेस्ट एंड दिस इज नॉर्थ एंड दिस पॉइंट इज साउथ। ठीक है, ये हमने एक ऐसे मैप बना लिया छोटा सा कि ये ईस्ट है, दिख रहा है आपको ईस्ट, ये ईस्ट है, ये नॉर्थ है, दिस इज द नॉर्थ, ये वेस्ट है और ये नीचे साउथ, ये साउथ है। ठीक है, अब आप यहां पर खड़े हो सेंटर में, आप कहां खड़े हो? सेंटर में। अगर आप राइट हैंड साइड की तरफ जा रहे हो तो आपका डिस्प्लेसमेंट प्लस में गिना जाएगा। अगर आप यहां चलते हो 2 किलोमीटर तो क्या लिखेंगे? आप प्लस 2 किलोमीटर चले। आपको मालूम है मैथ्स में ग्राफ रहता है, ग्राफ उसमें ऐसे ही लिखते हैं, जिसको बोलते हैं एक्स एक्सिस। तो ये 2 किलोमीटर, जब आप यहां चले जाओगे तो प्लस 4 किलोमीटर चले गए, आप यहां चले गए तो 6 किलोमीटर चले गए। तो जब भी हम राइट हैंड साइड की तरफ जाते हैं, कभी भी चलते समय, पैदल, कभी कहीं भी आप रास्ते से जा रहे हो, तो जब हम राइट हैंड साइड की तरफ जाते हैं, ईस्ट की तरफ जा रहे हैं, तो हम क्या बोलेंगे? राइट हैंड साइड की तरफ जाते समय हमारा डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू प्लस रहेगी। कितने किलोमीटर गए? प्लस 2 किलोमीटर गए। कितने किलोमीटर गए? प्लस 4 किलोमीटर। और चले तो कितना हो जाएगा? प्लस 6 किलोमीटर हो जाएगा। लेकिन अगर आप वेस्ट की तरफ जाते हो, इधर जाते हो, तो मैथ्स में इधर एक्स डैश एक्सिस रहती। अगर आपको ग्राफ आया होगा मैथ्स में अगर आपने ऐसा पढ़े होंगे कभी 8th स्टैंडर्ड में कि इसको एक्स एक्सिस बोलते हैं, इसको एक्स डैश एक्सिस बोलते हैं, इसको वाई एक्सिस बोलते हैं और इसको वाई डैश एक्सिस बोलते हैं। और इधर जो भी नंबर रहते वो हमेशा प्लस वाले रहते, बीच में जीरो रहता। ये 1 2 3 4 5 6 इधर के नंबर प्लस रहते और इधर के नंबर माइनस रहते। इधर के नंबर्स कैसे रहते? -1 -2 -3 -4 -5। इधर के नंबर माइनस में रहते हमेशा, और ऊपर के नंबर हमेशा कैसे रहते? प्लस, +1 +2 +3 +4 ऐसे रहते, और नीचे के नंबर माइनस में, -1 -2 -3 -4। नीचे के नंबर्स हमेशा माइनस में रहते हैं और ऊपर के नंबर्स हमेशा प्लस में रहते हैं। तो इसी तरह से ये रूल को फॉलो करते हुए, ये जो ग्राफ का जो रूल जिसने बनाया है, रेने डेकार्ट्स ने, नाम याद नहीं रखना किसने बनाया है, वो मैथ्स में आएगा। तो ये रूल के हिसाब से देखा जाए तो अगर आप राइट हैंड साइड की तरफ जा रहे हो तो आपका डिस्प्लेसमेंट कैसे गिनेंगे? प्लस। और अगर आप लेफ्ट हैंड साइड की तरफ जा रहे हो तो आपका डिस्प्लेसमेंट कैसे गिनेंगे? माइनस। -2 किलोमीटर। जब आप यहाँ पहुंच जाओगे तो -4 किलोमीटर। जब यहाँ पहुंच जाओगे तो -6 किलोमीटर। अगर लेफ्ट हैंड साइड की तरफ जाते हैं तो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू माइनस में गिनते हैं। ठीक है, अगर मैं देखो अभी आपके मैं राइट हैंड साइड की तरफ खड़ा हूँ या लेफ्ट की तरफ खड़ा हूँ, राइट। अब मैं इधर जा रहा हूँ ऐसा, और इधर जाते जाते समझो मैं 2 किलोमीटर चल गया, 2 किलोमीटर। तो मैं कितना चला? मेरा डिस्प्लेसमेंट कितना है? -2 किलोमीटर है, -2 है। ठीक है, -2 का मतलब क्या है कि लेफ्ट की तरफ गए। कभी भी डिस्प्लेसमेंट किसी ने बोला मेरा डिस्प्लेसमेंट -2 किलोमीटर है, तो समझ जाना कि वो 2 किलोमीटर लेफ्ट की तरफ गया। और किसी ने बोला मेरा डिस्प्लेसमेंट +2 किलोमीटर है, तो समझ जाना कि वो राइट हैंड साइड की तरफ 2 किलोमीटर गया। अंडरस्टूड? इसका ऐसा भी हो सकता है, आसमान में रॉकेट जब उड़ता है तो रॉकेट ऊपर जाता है आसमान में या जमीन के अंदर घुसता है? ऊपर जाता है। तो रॉकेट का डिस्प्लेसमेंट कैसा रहेगा ऊपर जाते समय? +1 किलोमीटर, +2 किलोमीटर, +3 किलोमीटर, +4 किलोमीटर, +5 किलोमीटर, ऐसा रहेगा। जो चीज ऊपर जाती है उसको कैसे गिनते हैं? प्लस में गिनते हैं। और जो चीज नीचे जाती है उसका डिस्प्लेसमेंट कैसे गिना जाता है? माइनस में। -2 किलोमीटर, -1 किलोमीटर, -3 किलोमीटर, -4 किलोमीटर, -5 किलोमीटर। अच्छा, मैंने यहाँ ऐसा लिखा 2 4 6, तो इसका मतलब ऐसा नहीं, आप पूरा भी लिख सकते हैं। -1 किलोमीटर, -2 किलोमीटर, -3 -4 -5 किलोमीटर, -6 किलोमीटर। तो मीनिंग समझ रहे हो?
जब हम राइट हैंड साइड की तरफ जाते हैं तो जितना डिस्टेंस आप राइट हैंड साइड की तरफ चलोगे तो उसको प्लस में गिना जाता है। डिस्प्लेसमेंट हमेशा राइट हैंड साइड में गए तो प्लस में गिनते और लेफ्ट हैंड साइड की तरफ गए तो माइनस में गिनते। याद रहेगा आपको? जैसे अभी मैं आपके सामने खड़ा हूं, अगर मैं इधर चला जाऊंगा 3 किलोमीटर दूर, ऐसे 3 किलोमीटर दूर चला गया समझो मैं, तो मेरा डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? +3 किलोमीटर। और अगर अभी मैं यहाँ 0 पे खड़ा हूँ और आपके सामने खड़ा हूँ और अगर मैं आपके लेफ्ट हैंड की तरफ जाना चालू कर दूं, ऐसा ऐसा चलते 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 यहाँ तक चला गया मैं 3 किलोमीटर, तो आपसे पूछूंगा बताओ मेरा डिस्प्लेसमेंट कितना है, तो आप क्या बोलोगे? -3 किलोमीटर। ये माइनस कहां से आ गया? क्योंकि मैं लेफ्ट हैंड की तरफ गया हूं। जब लेफ्ट हैंड साइड की तरफ जाए तो डिस्प्लेसमेंट के वैल्यू में माइनस साइन लगाना, और कोई चीज अगर राइट हैंड साइड की तरफ जा रही है तो उसके डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू में हमेशा प्लस साइन लगाते। कोई चीज जब ऊपर जा रही है, कितने किलोमीटर कितने मीटर ऊपर जा रही है, तो जब भी कोई चीज ऊपर जाती है तो उसके डिस्प्लेसमेंट जितना भी होगा, अगर मैंने एक ये पेन पकड़ा, मेरे हाथ में एक पेन है ऐसा, और पेन को मैंने ऊपर फेंक दिया, मेरे को गिर गया, मैं तो क्रिकेट खेलना भी भूल गया, ऊपर फेंक दिया अगर मैंने ये पेन को, और पेन अगर ऊपर चला गया तो इसका डिस्प्लेसमेंट कैसा रहेगा? ऊपर 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 जाएगा तो प्लस में रहेगा। समझो मैंने पेन को ऊपर फेंका और ये ऊपर जाते जाते कितना ऊपर चला गया? 2 मीटर ऊपर गया। कितने मीटर? 2 मीटर। कितने मीटर ऊपर गया पेन? 2 मीटर। तो आप इसको बोलेंगे कैसा? डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पेन इज +2 मीटर। +2 मीटर। क्यों +2? क्योंकि जो चीज ऊपर जाती है उसका डिस्प्लेसमेंट प्लस में गिना जाता है। अब ये पेन यहाँ है, मैंने इसको नीचे छोड़ दिया और पेन नीचे गिर गया फ्लोर पे, तो मैंने ये डस्टर है, ये है, इसको मैं छोड़ दे रहा, ये देखो डस्टर नीचे गिर गया। तो अब डस्टर कितने दूर है? यहाँ से कितने दूर जाके गिरा? तो 3 मीटर दूर गया डस्टर। पेन कितने मीटर दूर जाके गिरा? 3 मीटर दूर। अब आपसे कोई पूछेगा व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द डस्टर, यहाँ से डस्टर कितने दूर गिरा, कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ डस्टर का, तो बोलना -3 मीटर। -3 मीटर। अगर आप टेप लगा के गिनोगे तो 3 मीटर रहेगा। ये टेप लगाकर मेजर करोगे, गिनोगे कितना डिस्प्लेसमेंट है, कितना डिस्टेंस है, तो 3 मीटर रहेगा। लेकिन क्योंकि ये नीचे गिरा इसलिए, और नीचे गिरने वाली चीज को हमेशा माइनस बताते हैं, तो इसलिए इसका डिस्प्लेसमेंट -3 मीटर रहेगा। पेन का भी डिस्प्लेसमेंट नीचे गिरा तो -3 है, और डस्टर का भी -3 है, क्योंकि दोनों फ्लोर पर गिरे, दोनों सेम हाइट पे है, दोनों एक ही जगह पे जाके गिरे, इसलिए। बात समझ में आ रही है आपके? तो जो चीज राइट की तरफ जाती है उसका डिस्प्लेसमेंट प्लस में लिया जाता है, पॉजिटिव। जो चीज लेफ्ट हैंड की तरफ जाती है उसका डिस्प्लेसमेंट माइनस में, जो चीज ऊपर जाती है उसका डिस्प्लेसमेंट प्लस, और जो चीज नीचे जाती है उसका डिस्प्लेसमेंट माइनस में। तो डिस्प्लेसमेंट प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है। अंडरस्टूड? और डिस्टेंस, अगर किसी ने बोला मैं राइट हैंड की तरफ जा रहा हूं, मैं या राइट हैंड की तरफ जा रहा, मेरा डिस्टेंस कितना है, तो बोलना भैया तुम्हारा डिस्टेंस 2 किलोमीटर है। और अगर समझो मैं यहाँ आपके सामने हूँ, अगर मैं इधर जाता हूँ 2 मीटर दूर, तो मेरा डिस्टेंस कितना है? 2 मीटर। और फिर से अब मैं बीच में आ गया, अब मैं इधर जा रहा हूँ 2 मीटर, तो मेरा डिस्टेंस कितना है? 2 मीटर। चाहे लेफ्ट जाओ या राइट जाओ या ऊपर जाओ या नीचे जाओ, डिस्टेंस हमेशा प्लस में गिना जाता है। ऊपर भी गए तो +2 मीटर, +3 मीटर, +4 मीटर, नीचे भी गए तो +5 मीटर, +6 मीटर, +7 मीटर, +2 मीटर, +4 मीटर, जो भी रहेगा। लेफ्ट जाओ राइट जाओ, लेफ्ट राइट अप डाउन किधर भी जाओ, डिस्टेंस की वैल्यू हमेशा प्लस में लिखी जाती है, ठीक है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट में क्या किया जाता है? जो राइट हैंड साइड की तरफ जाता है या ऊपर जाता है तो उसके डिस्प्लेसमेंट के सामने प्लस साइन लगाया जाता है। और अगर कोई चीज लेफ्ट हैंड साइड की तरफ जा रही है या नीचे जा रही है ना, एक अंकल है बिल्डिंग पे है, बिल्डिंग से नीचे झांक कर देख रहे हैं और वो अंकल बिल्डिंग पे से गिर गए, और 2 किलोमीटर ऊंची बिल्डिंग थी, 2 किलोमीटर से नीचे जमीन पे गिर के मर गए। और किसी ने पूछा कि ये अंकल का डिस्प्लेसमेंट कितना है, तो हम क्या बताएंगे? अंकल का डिस्प्लेसमेंट -2 किलोमीटर है। अंडरस्टूड? जो चीज नीचे आती है उसका डिस्प्लेसमेंट माइनस। आई होप कि आपको समझ गया होगा कि व्हेन वी गो टुवर्ड्स राइट हैंड साइड, displacement is taken to be positive, and when we go towards left hand side, displacement is taken to be negative. जब कोई चीज़ ऊपर जाती है तो उसका डिस्प्लेसमेंट प्लस में गिना जाता है, कोई चीज़ जब नीचे गिरती है तो उसका डिस्प्लेसमेंट माइनस में। तो एक अंकल है जो बहुत ऊंची बिल्डिंग पर चढ़ गए, 2 किलोमीटर ऊंची बिल्डिंग है समझो, और वो अंकल ऊपर से नीचे गिर गए, बिल्डिंग से नीचे गिर गए, तो अंकल का डिस्प्लेसमेंट कितना रहेगा? -2 किलोमीटर रहेगा। क्यों? क्योंकि अंकल नीचे गिरे। और एक आध अंकल को अपन ने रॉकेट पे बैठा दिए समझो, सैटेलाइट
उनको लॉन्च कर रहे हैं, अंकल को सैटेलाइट पे बैठा दिए और उनको अंकल को ऊपर भेज दिए। आपको मालूम है सबसे पहले स्पेस में एनिमल्स में कौन से एनिमल को ले गए थे अदर देन ह्यूमन बीइंग्स? तो सबसे पहले डॉग गया था आसमान में, स्पेस में डॉग को भेजे थे अपने अर्थ वाले लोगों ने। वो डॉग का नाम लाइका था, LAIKA, लाइका। तो वो डॉग को स्पेस में भेजे थे। अब डॉग ऊपर 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 जा रहा था, हालांकि वो डॉग मर गया था बेचारा, तो डॉग ऊपर जा रहा था। तो डॉग का डिस्प्लेसमेंट कैसे लिखेंगे हम? प्लस में लिखेंगे। अगर वो समझो कितने किलोमीटर ऊपर गया होगा, लेटेस्ट से वो 3600 किलोमीटर, सॉरी नॉट 3600 ओनली, 36 लाख किलोमीटर ऊपर गया होगा, 36 लाख किलोमीटर ऊपर गया होगा, नियरली 36 लाख किलोमीटर ऊपर। तो उसका डिस्प्लेसमेंट कैसे लिखेंगे अपन? प्लस 36 लाख। और अगर कोई ऊपर से नीचे गिर जाए तो माइनस में। आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अब मैं थोड़ा सा आगे का पढ़ा देता हूँ, फिर हम अपना वीडियो कंप्लीट आज का रुका देंगे, ठीक है। नेक्स्ट डिफरेंस देख लो एक और। द नेक्स्ट डिफरेंस इज आफ्टर मोशन, नंबर 3 इज आफ्टर मोशन, चलने के बाद, आफ्टर मोशन डिस्टेंस कैन नॉट बी जीरो। आफ्टर मोशन डिस्टेंस कैन नॉट बी जीरो। कहने का मतलब है कि अगर मैं यहाँ से 2 किलोमीटर स्कूल गया और फिर से 2 किलोमीटर या 2 नहीं 5 कर देते, अगर आप घर से 5 किलोमीटर दूर स्कूल गए और स्कूल से 5 किलोमीटर वापस घर पे आ गए, तो आपका टोटल डिस्टेंस कितना होगा? आपने चला ही नहीं ना, आपने पैदल चले ना, 5 किलोमीटर स्कूल गए फिर 5 किलोमीटर वापस चल के आए, तो उसको जीरो नहीं बोलेंगे। आपका स्टार्टिंग पॉइंट क्या था? घर, और फिनिशिंग पॉइंट भी क्या था? घर। आप घर से स्कूल गए और स्कूल में बिना ठहरे बिना रुके स्कूल में तुरंत आप वापस घर में आ गए, तो घर से स्टार्ट हुए और वापस घर में आके एंड हो गए, फिनिश हो गए। घर से निकले और घर पर ही आ गए, तो आपका डिस्टेंस कितना होगा? 10 किलोमीटर्स। क्योंकि चलने के बाद, कुछ दूर चलने के बाद डिस्टेंस कभी जीरो नहीं कहलाता। घर से स्कूल गए और स्कूल से घर आए तो डिस्टेंस जीरो नहीं होगा, क्योंकि आपने कुछ पैदल चलाई की ना, आपकी मेहनत हुई ना। तो मेहनत करने के बाद, कुछ पैदल चलने के बाद या गाड़ी से चलने के बाद या कार में बैठ के जाने के बाद, कैसे भी जाओ आप, चाहे कार में जाओ, पैदल जाओ, बाइक पे जाओ, 2 व्हीलर पे जाओ, 3 व्हीलर पे जाओ, 5 व्हीलर पे जाओ, कोई भी गाड़ी पे बैठ के जाओ या पैदल जाओ, आप एक बार कहीं से कहीं चले गए, एक जगह से दूसरी जगह गए, तो डिस्टेंस की कुछ ना कुछ वैल्यू होती है। 1 मीटर, आधा मीटर, 2 मीटर, 5 मीटर, कुछ ना कुछ वैल्यू रहेंगी, लेकिन जीरो नहीं रहेंगी। डिस्टेंस जीरो कब रहेगा? जब आप चलोगे ही नहीं। मैं यहाँ के नहीं खड़ा हूँ, मैं चलता ही नहीं हूँ, तो मेरा डिस्टेंस जीरो रहेगा। लेकिन अगर मैं मोशन करता हूँ, अगर मैं यहाँ से यहाँ जाता हूँ तो मेरा, और यहाँ जाके फिर से वापस भी आता हूँ, तो डिस्टेंस कभी जीरो नहीं होगा। डिस्टेंस, क्योंकि मैंने चला हूँ पैदल, तो डिस्टेंस जीरो नहीं होगा। लेकिन डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है। कैसे? तो स्कूल से घर से स्कूल गए 5 किलोमीटर और स्कूल से वापस घर आए 5 किलोमीटर, तो डिस्टेंस कितना हुआ? 5 किलोमीटर जाने का और 5 किलोमीटर आने का, 10 किलोमीटर हो गया। लेकिन डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? जीरो। क्यों? क्योंकि जहां से चलना स्टार्ट किए वहीं पर रुक गए, आ गए वापस। तो आफ्टर मोशन अगर आप स्कूल जाके स्कूल में ही रुक जाते हो तो आपका डिस्प्लेसमेंट जीरो नहीं होगा। लेकिन घर से स्कूल गए और स्कूल से वापस घर आए तो डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा। आफ्टर मोशन डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो। डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो। कुछ चलने के बाद डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है। अगर आप जहां से और यहां लिख दूं, कब, ब्रैकेट्स में लिख देता हूं, इफ स्टार्टिंग पॉइंट एंड फिनिशिंग पॉइंट इज द सेम। If starting point and finishing point is same, अगर starting point और finishing point same है तो displacement zero हो जाएगा। If starting point and finishing point zero है तो displacement क्या हो जाएगा? Zero हो जाएगा। Understood? After motion displacement can be zero अगर starting point और finishing point same हो तो। ठीक है, I hope हम यहाँ रुक जाएंगे। एक छोटा सा आपको होमवर्क दे देता हूँ मैं, ये होमवर्क आप मुझे करके बताना। अपनी टेक्स्ट बुक में एक एग्जांपल दिया है, एक क्वेश्चन पूछा है। एक लड़की है, उसका नाम है स्वरली।
स्वरली, लड़की का नाम है स्वरली नाम की लड़की अपनी टेक्स्ट बुक में, देयर इज अ गर्ल कॉल्ड स्वरली। और वो क्या करती है, एक फील्ड, एक खेत है गोल गोल, इसमें चलती है वो। कल चलना कहाँ से स्टार्ट करती है, पॉइंट ए से। शी स्टार्ट्स वॉकिंग फ्रॉम पॉइंट ए, पॉइंट ए से चलते चलते ऐसी डायरेक्शन में गोल गोल सर्कमफरेंस से चलती है, इस रास्ते पे वो गोल गोल चलती है। और ए से चलकर वो कहां तक आती है, बी तक आती है। कैसे चलती है वो, ये यहां से रास्ते से, इस रास्ते से चलकर आई वो ऐसे यहां तक। और इस रास्ते की डायमीटर कितनी है, 100 मीटर। ये सर्कल की डायमीटर कितनी है, 100 मीटर। तो आपसे डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछ रहा हूं मैं, व्हाट इज हर डिस्प्लेसमेंट, स्वरली का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, और स्वरली कितना डिस्टेंस चली, स्वरली का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा और डिस्टेंस कितना होगा। अगर वो ए से चलकर बी तक पहुंची तो, और वो किस रास्ते से चलकर जा रही है, इस रास्ते से, ये स्वरली है, ठीक है, ये स्वरली है, लंबे लंबे बाल वाली, लंबे लंबे बाल वाली, केश कांति, ये स्वरली है, ठीक है। ये पूरी स्वरली है, अलग अलग पोज में लिख रही है जाते समय। तो स्वरली कौन से रास्ते से गई, इस रास्ते से, ये ऐसा टक 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 यहाँ तक आ गई। ए से चल के कहाँ तक आई, बी तक। कैसे आई, ये सर्कमफरेंस पे चलते चलते। तो उसने उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, डिस्टेंस कितना हुआ। और ये क्वेश्चन को मैं बोल देता हूँ हॉर्ट्स का क्वेश्चन, बोल दूं। हॉर्ट्स का मतलब क्या होता है, हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स। हॉट्स का मतलब होता है डेंजरस क्वेश्चन, जिसमें बहुत दिमाग लगाना पड़ता है। तो अगर आपको इसका आंसर आता है तो अच्छी बात है, और नहीं आता है तो और अच्छी बात है। फिर मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में ये समझा के दूंगा, ठीक है। अगर आपका आंसर आता है तो आप मुझे व्हाट्सएप पे सेंड करोगे, और अगर नहीं आता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करके दिखाऊंगा। लेकिन दिमाग लगाने की कोशिश जरूर करना, ठीक है। वो ए से स्टार्ट हुई, उसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, ए है, ए इज द स्टार्टिंग पॉइंट, और फिनिशिंग पॉइंट क्या है, बी है। उसका फिनिशिंग पॉइंट कहाँ है, बी है, ठीक है, फिनिशिंग पॉइंट बी है। चलो अब हम यहाँ रुक जाते हैं। हैव अ नाइस डे, खाओ पियो खुश रहो और अच्छे से पढ़ाई करो।